morning students, how are you? Hope you all are fit and fine. Students, today we will do our chapter number 3 worksheet work is in page number 21. So take out page number 21 and start writing with me. Now, look at question number 1. Do you think Tony enjoyed playing in the garden? क्या आपको ऐसा लगता है कि टोनी को बगीचे में खेलना पसंद था? How can you say that? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? How can we say that? We can say that because Tony loved the trees and flowers on the trees. And he loved to play with dry leaves, bundle of sticks and old tin pail, so that we can say that Tony loved to play in the garden. Now we will write this answer. In question number A, and its answer number 1 is Tony loved to look at the colorful flowers, C-O-L-O-U-R, color, F-U-L, full, flowers, F-L-O-W-E-R-S, flowers. Tony loved to look at the colorful flowers and the fruits, F-R-U-I-T-S, fruits on the trees. Full stop. And he loved to play with bundles, B-U-N-D-L-E-S, bundles of sticks, S-T-I-C-K-S, sticks, comma, dry leaves, L-E-A-V-E-S, dry leaves, and old tin pail. So, we can say that Tony enjoyed playing in the garden. Full stop. Means Tony loved to look at the colorful flowers and the fruits on the trees. टोनी को रंग बिरंगे फूल और फलों से भरे हुए पेड़ को देखना पसंद था. He loved to play with bundles of sticks. उसे लकड़ियों के बंडल्स के साथ खेलना, ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियों के साथ खेलना, एंड एन ओल्ड टिन पेल, और एक पुराने टिन के पेड़ के साथ खेलना पसंद था. सो वी कैन से दैट, इसलिए हम ये ऐसा कह सकते हैं that Tony enjoyed
प्लेइंग इन द गार्डन, कि टोनी को गार्डन में खेलना पसंद था। नाउ स्टूडेंट लुक एट आवर क्वेश्चन नंबर 2। वेयर डिड द नरेटर फाइंड द एंट्स? एंड वेयर डिड ही फाइंड द एंट्स? He find the ants on the broken log in the garden. And what kind of ants were they? They are black, shiny ants. So we will write this answer here. Start writing with me. Now write down question number 2. We will separate our board like this. Now look at answer number 2. The narrator, N-A-R-R-A-T-O-R, narrator found, F-O-U-N-D, found the ants. Narrator found the ants on an old broken, B-R-O-K-E-N, broken log in a corner of the garden. G-A-R-D-E-N, garden means नरेटर ने जो स्टोरी को सुना रहा है उसने एंट्स को कहाँ पाया? उसने एंट्स को एक पुराने टूटे हुए लकड़ी के लट्ठे पर जो कि कॉर्नर ऑफ द गार्डन, बगीचे के किनारे पे था, उसमें पाया। नाउ स्टूडेंट इट्स क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट काइंड ऑफ एंट्स वर दे? वो एंट्स किस टाइप की थी? तो नाउ वी विल राइट दिस आंसर। They were shiny black ants, यानी वे शाइनी यानी चमकदार, ब्लैक मीन्स काली, एंड्स यानी चींटियां थी। मीन्स नरेटर ने यानी जो कहानी सुना रहा है उसने एंड्स को एक पुराने टूटे हुए लकड़ी के लट्ठे पर जो कि गार्डन के किनारे बगीचे के कॉर्नर में था वहां पर पाया। और वे जो एंड्स थी वो कैसी थी? शाइनी यानी चमकदार और काली एंड्स थी। ओके स्टूडेंट, दीज आर 2 क्वेश्चंस ऑफ आवर क्वेश्चन बैंक। होप यू वुड हैव राइट दीज आंसर्स in your worksheet. Now student, we will look seeing words. There are different ways of looking. First one is watch. Watch means to look attentively for a period of time. Means कुछ समय तक किसी चीज को ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू वॉच दिस मूवी। मैं यह फिल्म देखना चाहता हूँ। नाउ लुक एट अनदर एग्जाम्पल, आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी और वीडियो। मीन्स मैं पहले ही इस फिल्म या वीडियो को देख चुका हूँ। We use watch for focused attention on something that is moving or changing. Means हम watch वर्ड का यूज़ तब करते हैं जब हम किसी चीज़ पर ध्यान देते हैं, फोकस्ड करते हैं और वो चीज़ मूव और चेंज करती रहती है। मीन्स जो हम देख रहे हैं उसमें परिवर्तन और हिलना डुलना जारी रहता है। Now look at another example. I want to watch this movie. मैं यह फिल्म देखना चाहता हूँ। Now
look at word look. Look means to turn your eyes towards something so that you can see it. Means अपनी आँखों को कुछ देखने के लिए मोड़ना. यानी अगर हमें कुछ देखना है, कोई हमें इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि उधर देखो, तो हम अपनी आईज को टर्न करते हैं. नाउ लुक एट इट्स एग्जाम्पल. लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़. मीन्स इसे देखो, यह कितना सुंदर है. मीन्स कोई हमें इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि इधर देखो, ये कितना सुंदर है. नाउ लुक एट सम अदर एग्जाम्पल्स. लुक एट दैट, उसे देखो. लुक एट मी, मुझे देखो. लुक एट हर, उसे देखो. मीन्स समवन इंस्ट्रक्ट मी टू लुक एट दैट, look at me or look at her. Now look at next word, stare. Stare means घूरना. Look at this example. Stop staring me. मुझे घूरना बंद करो. To look at something for a long time with eyes wide open. यानी अपनी आँखों को चौड़ा करके, खुला करके किसी चीज़ को देर तक देखना. नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल. स्टॉप स्टेयरिंग मी. मुझे घूरना बंद करो. वाई वर यू स्टेयरिंग एट मी. मीन्स तुम मुझे क्यों घूर रहे थे. नाउ लुक एट नेक्स्ट एग्जाम्पल. ही इज़ कीप ऑन स्टेयरिंग मी. वह मुझे घूरता रहता है. नाउ लुक एट नेक्स्ट वर्ड, सी. दैट कम्स, सी मीन्स देखना, साइड, दैट वी वर नॉट लुकिंग फॉर. मीन्स कोई चीज़ हमारी आंखों के सामने आ जाना जिसे हम देख नहीं रहे थे. मीन्स बाई चांस कोई चीज़ हमारे सामने आ जाना, बट हम उसको देखना नहीं चाह रहे थे. नाउ लुक एट नेक्स्ट एग्जाम्पल. कम एंड सी. आओ और देखो. मीन्स कोई मुझसे आपसे कह रहा है कि आओ और इसे देखो. इन नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैन यू सी इट. क्या आप इसे देख सकते हैं. मीन्स हम उसे देख नहीं रहे हैं, समवन इंस्ट्रक्टिंग अस कि आप इसे देख सकते हैं. नाउ लुक एट नेक्स्ट एग्जाम्पल. डिड यू सी दैट बर्ड. क्या तुमने उस चिड़िया को देखा. इट मीन्स समवन आस्किंग टू अस कि क्या तुमने उस चिड़िया को देखा. मीन्स हम देख नहीं रहे हैं, किसी ने हमसे ऐसा करने के लिए पूछा कि क्या आपने ऐसा किया. नाउ ग्लांस का मतलब होता है एक नज़र में. नेक्स्ट वर्ड, आई ग्लांस्ड एट द न्यूज़पेपर का मतलब मैंने अखबार. आई ग्लैंस्ड एट द न्यूज़पेपर. मीन्स मैंने अखबार पर एक नज़र मारी. मीन्स मैंने उसको थोरोली नहीं पढ़ा, बट फटाफट एक नज़र डाली. अखबार पर एक नज़र मारी या एक नज़र मैंने अखबार को देखा. नाउ वी विल मैच अवर यस्टरडेज होमवर्क दैट वाज इन वर्कशीट पेज नंबर 2020. नाउ लुक एट vocabulary. That was vocabulary. Now look at sentence number 1. There are some words in bracket: see, look, watch, glance and stare. Now we will match our yesterday's homework. Now look at number 1 sentence. During speech the children dash at their watch every few minutes because they want to go home and play. During speech यानी भाषण के दौरान the children, सारे बच्चे, at their watches, अपने children हर 5 मिनट बाद अपने वॉच यानी घड़ी को देखते, बिकॉज दे वॉन्ट टू गो होम एंड प्ले, क्योंकि वो अपने घर जाना चाहते हैं और खेलना चाहते हैं. तो जब मैंने बताया ना ग्लैंस, ग्लैंस मीन्स क्या होता है, यानी एक नजर देखना. सो वी विल हियर वी यूज ग्लैंस वर्ड.
फर्स्ट आंसर इज glance, Glance, glance. Glance means एक नजर डालना. Now look at our answer number 2. Every evening यानी हर शाम after a long walk, काफी दूर चलने के बाद, the two old men यानी दो बूढ़े व्यक्ति आदमी dash the boys play football, बच्चों को खेलते हुए फुटबॉल खेलते हुए देखते हैं. तो here which word we will use? Here we will use watch, यानी किसी को किसी काम को करते हुए लगातार देखना, अपने इंटरेस्ट से देखना, और उसमें मूव हो रहा है यानी बच्चे खेल रहे हैं तो इधर उधर भाग भी रहे हैं, है ना. तो उसके लिए हम वॉच यूज करेंगे. सो द आंसर नंबर 2 इज WATCH, वॉच. नाउ लुक एट नंबर 3 सेंटेंस. आई फील वेरी अनईजी व्हेन यू डेज एट मी. मुझे बहुत ही अटपटा सा महसूस होता है जब तुम मुझे देखते हो. यानी आई फील अनईजी, मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ जब मुझे देखते हो. इट मीन्स कौन सा देखने के लिए वर्ड यूज होगा? स्टेयर. स्टेयर मीन्स घूरना. तो वी विल यूज हियर स्टेयर, STARE, स्टेयर. नाउ लुक एट सेंटेंस नंबर 4. अतुल एंड प्रणव डेज वेरी हैप्पी आफ्टर विनिंग द पेंटिंग कॉम्पिटिशन. अतुल और प्रणव पेंटिंग के कंपटीशन को जीतने के बाद बहुत खुश हैं, और वो खुश हैं तो इस खुश के लिए खुश दिखाई दे रहे हैं. तो इस खुशी के लिए हम क्या यूज करेंगे? लुक, LOOK. लुक मीन्स देखना. नाउ लुक एट आंसर नंबर 5. एट दिस मोमेंट यानी इस क्षण, आई डैश अ ब्यूटीफुल रेनबो. मैं देखता हूं एक खूबसूरत सा रेनबो. और रेनबो सी मीन्स देखना, और सी मैंने पहले भी देखा जब हम जस्ट अ लुक डालते हैं, निगाह डालते हैं, तो मीन्स हम यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज करेंगे देखने के लिए? सी. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज अवर yesterday's homework. Hope you would have matched it. Okay student, goodbye everyone, take care, be safe at your home. Bye bye everyone.